Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my class for 9. Last class we already discussed the question number up to 10. टाइम कम होने की वजह से हमने 11th और 12th क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के हमने छोड़ दिए थे. आज मैं 11th और 12th को क्वेश्चन को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहूँगा और फिर क्लास मेरी ऑफ होगी. नेक्स्ट फिर क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. ओके स्टूडेंट, तो नाउ एक्सरसाइज नंबर 8.1 चैप्टर 8 एंड कोऑर्डिनेटर. तो क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? Now in question number 11 already given in triangle ABC and DEF. Triangle ABC and DEF are given and also given the two parts are equal and parallel. AB is parallel equal to DE, AB parallel to DE and BC parallel equal to EF. And similarly vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F. Figure is already given but suppose figure is not given, so you can draw according to in question. Now what is the given? In first statement given that triangle ABC. So draw the triangle ABC. Here triangle ABC and DEF. So draw the triangle DEF. Join करना vertices को, तो triangles को मैं एक लाइन में न लेकर थोड़ा सा इस तरह से ले रहा हूँ. DEF ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. Join in corresponding to A to D. So join A to D and C to B to E and D to F. So this figure is the completed. Now write the given parts. Actually figure is also given, so we write. Now first is given. Now given that AB and DE, so AB parallel to DE and AB is equal to DE. First and second is, what is the second? Second is BC and EF. BC parallel to EF and BC is equal to EF. These two parts are equal and now prove that first result. What is the first result? Coordinator ABED is a parallelogram. ये मुझे प्रूव करना है. To prove, ये हम लिख देते हैं to prove first result. चलिए पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ. See ABED. Where is ABED? ABED जो गिवन पार्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं. In ABED, you know AB is parallel to ED. AB is parallel to DE and AB is equal to also DE. Why? AB parallel to DE, AB equal to DE. Already given in question. And use the property of parallelogram. One pair of opposite sides in any quadrilateral are parallel and equal both. Then such a type of quadrilateral is a parallelogram. So use the property of parallelogram here. It's very important. Therefore, quadrilateral ABED is a parallelogram. अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हो ही गया है, तो अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल एंड इक्वल. तो नाउ विच ऑफ अदर पेयर वो अपन फाइंड आउट करते हैं. ABED. सो BE पैरेलल टू AD and BE is equal to AD. Use this equation. ये हमने किसके बेसिस पे लिखा? कोऑर्डिनेटर BABED इज ए पैरेललोग्राम. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड, व्हाट इज द सेकंड? इन सेकंड, नाउ प्रूव दैट कोऑर्डिनेटर BEFC
BEFC, coordinated BEFC is a parallelogram. Where is BEFC? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है, हमें जो गिवन है उसको एक अरेंज करना है सीक्वेंस में और ऑल रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। BEFC, BE, where is BE? BEFC. Now in this जो कंस्ट्रक्शन किया उसको छोड़िए, BEFC में BC is parallel to EF and BC is equal to EF. Why? Given. Second region, ध्यान से देखें, BC parallel to EF and BC equal to EF. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं given. अगर हमने कहा सेम इन कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ, देयरफॉर कोऑर्डिनेटर, व्हिच कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, ये हमें यूज करना है। तो व्हिच अदर पेयर? BEFC में BC तो हमने यूज कर लिया, तो BE इक्वल टू CF मीन्स BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF। आप लिखेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड रिजल्ट, अब हमें थर्ड में क्या प्रूव करना है? थर्ड में हमें प्रूव करना है यहाँ पे AD पैरेलल टू CF। हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखें, फ्रॉम 1 and 2, तो नाउ यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। क्या 1 and 2 में कोई कॉमन पार्ट है? हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया था? फर्स्ट BE इन फर्स्ट इक्वेशन, BE पैरेलल टू AD, BE यहाँ पर भी है और BE यहाँ पर भी है। सिमिलरली BE यहाँ भी यूज कर रहे हैं और B हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। एक बता देता हूं मैं आपको, A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C। कैन यू राइट A इक्वल टू C? A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली A C के भी इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A इज पैरेलल टू B एंड B इज पैरेलल टू C, तो डेफिनेटली A इज आल्सो पैरेलल टू C। वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। BE is parallel to AD and BE is also parallel to CF. So you can write from 1 and 2, AD is also parallel to CF and BE is equal to AD and BE is equal to CF. So AD is also equal to CF. ये हमने यूज कर लिया है। नाउ इसके बेसिस पे अब आप क्या लिख सकते हैं वो आपको देखना है। देयरफॉर फोर्थ रिजल्ट, वैसे फोर्थ रिजल्ट हमें प्रूव क्या करना है? फोर्थ रिजल्ट हमें करना है ACFD। वेयर इज ACFD? ACFD आप लिख सकते हैं, इन ACFD में ACFD हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। वैसे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं ACFD, AC कोऑर्डिनेटर कौन सा था? नेमिंग ACFD, तो आप लिखिए ACFD। ACFD इज आल्सो पैरेललोग्राम। साथ में आप लिख सकते हैं देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अदर पेयर क्या बनता है? ACFD में अदर पेयर बनता है AC इक्वल टू DF। AC is equal to DF and also parallel। पर मैंने यहाँ पैरेलल नहीं लिखा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे केवल यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट लास्ट, ये आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नंबर 4 एंड देन 5। इसमें वैसे तो 6 है लेकिन अपन ने डायरेक्टली लिख दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा दिस रिजल्ट, तो ये था आपका एक्चुअली थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट, और फिर हमने लिखा यहाँ पर ये सॉरी, दिस इज द फिफ्थ रिजल्ट, दिस इज द फोर्थ रिजल्ट
एंड इट इज कंफ्यूज ना होगा प्लीज, ये चेक कर लीजिएगा। और ये 6 लीटर इन बोथ द ट्राइंगल्स all sides are equal. In triangle ABC and triangle DEF, all यहाँ पे लिखें in triangle all sides are equal. So by SSS triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay students, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अब रह जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको कंप्लीट करते हैं। डाउट्स आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो टेक्निकली एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर आप स्टार लगा सकते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन हम जो करेंगे वो कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कीजिए जिससे कि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? फर्स्ट थिंग, इन क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. You know about the meaning of trapezium, and also given that AD is equal to BC. That means its non-parallel sides are equal. एक चीज मैं बता दूं, in a trapezium, we know that already in a triangle opposite sides are equal. That means such a triangle is called isosceles triangle. Similarly, in any trapezium, non-parallel sides are equal. Such a trapezium is called isosceles trapezium. ऐसे trapezium को आप isosceles trapezium कह सकते हैं। अगर non-parallel sides equal हैं, parallel नहीं है but equal, तो ऐसे trapezium को हमने एक नाम दे दिया isosceles trapezium. अगर आपसे कभी पूछा जाए कि what is the meaning of isosceles trapezium, तो you can say in any quadrilateral, in any trapezium, non-parallel sides are equal. So such a trapezium is called isosceles trapezium. Okay students, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को, जो थोड़ा सा टेक्निकली जो क्वेश्चंस हैं इसको अपन आज कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ABCD, this A and it is B and it is C and it is D is a trapezium with AB is parallel to DC, and this AD, it is a non-parallel side and equal to BC. तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसके बेसिस पे चलिए अब इसमें कंस्ट्रक्शन आपको क्या याद रखना है। ड्रॉ द पैरेलल साइड फ्रॉम द वर्टेक्स C पैरेलल टू AD। कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना यहाँ पे, सिंपल ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स C a side parallel to AD and extend AB को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। जब इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। उसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया E। जब ये इंटरसेक्ट हो जाती हैं तो अब आप देख सकते हैं, हमने AB पैरेलल टू DC था, तो दैट मीन्स AE, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू DC एंड ऑलरेडी गिवन दैट AE is parallel to DC, ये हमने लिखा ट्रेपेजियम के बेसिस पे। AB को एक्सटेंड किया तो AD is parallel to DC, that means also AE is parallel to DC। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, CE ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया AD की, एंड AD is also parallel to CE, that means in this quadrilateral AECD both pair of opposite sides are parallel।
तो आप क्या लिखेंगे? दैट मीन्स कोऑर्डिनेटर AECD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, दैट मींस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना है? पहले तो यहाँ पे एंगल ए और बी को हमें इक्वल प्रूफ करना है। मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। अब यूज कैसे करना है वो देखना है हमें। इन ट्रापीजियम ABCD, कोऑर्डिनेटर ABCD already given AD is equal to BC given. And also अगर ये इसके इक्वल है, लेकिन हम कहते हैं AD is also equal to BCL and also AD is equal to EC पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूव किया AECD इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब एक बार बताइए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये इसके इक्वल है और यही साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू EC। इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल BCE opposite sides are equal, so these two angles are equal. Angle 1 and 2 हमने नेमिंग कर दिया। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। 3 और 4 ये नेमिंग इसलिए कर रहा हूँ एंगल्स के, तो नंबरिंग, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अदरवाइज आप लिखोगे एंगल ABC, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, नंबरिंग करने से इजी होगी आपने। तो एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल, सो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मुझे 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करना है। यहां पे दिमाग लगाना आपको। इन एनी पैरेललोग्राम ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है, चाहे वो ये एंगल्स तो लो या ये दोनों एंगल्स लें या ये दोनों एंगल्स लें या ये दोनों एंगल्स लें। तो यहाँ हम ये लिखना चाहते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो पहले लिखो कोऑर्डिनेटर AECD is a parallelogram, that means angle 1 plus angle 4 is equal to 180 and angle 2 plus angle 3 is also 180। अब ये क्यों लिखा? कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ये लीनियर पेयर है, एक लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, उनका सम ऑटोमेटिकली 180 होगा। देयरफॉर अब आपने क्या लिखा? बोथ आर इक्वल टू 180, दिस बोथ आर इक्वल टू 180, दोनों का सम 180 है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। दैट मीन्स दिस सम इज इक्वल टू दिस सम, बट ऑन बोथ द साइड्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो कैन यू राइट एंगल 4 and angle 3 are cut. Why? Because both are equal. तो equal parts को हम कट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला? एंगल 1 is equal to एंगल 2। इसको हमने क्या नाम दिया था? एंगल 1 2 कहाँ है? एंगल 1 and 2। अब आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू B। सिमिलरली अब आपस से आप सम ऑफ एंगल्स 180 बार बार लिख के ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करके पूरा एंगल लेंगे, फिर 180 लिखेंगे इनका सम, फिर एंगल D और C को आप वापस से आपने C और D का सम 180 लिखा, फिर वापस से 2 और 3 ये C एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट के बेसिस पे, और उसके बेसिस पर हम यहाँ हमने 3 और 4 को ऐसे इक्वल किया, यहाँ 2 और इस पूरे एंगल को हम अल्टरनेट के बेसिस पे इक्वल प्रूफ करेंगे। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट ऐसे न करने की बजाय डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल C इज आल्सो इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। दो रीजन हमने प्रूव कर दिए। अब हमें ABC और BAD हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले हम चलते हैं
नाउ इन ट्राइंगल ABC, पहले आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल्स या क्राइटेरिया के बेसिस पर हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट, विच ट्राइंगल्स, वेयर इज ट्राइंगल ABC? ABC ट्राइंगल तभी मिलेगा जब आप C को A से ज्वाइन करेंगे. जब ये सारे रिजल्ट प्रूफ हो गए विदाउट joining the diagonal, but here for this result आपको ये join करेंगे तभी तो triangle मिलेगा ABC. Now second triangle BAD मतलब मुझे B को D से join करना होगा. अब ये ट्रेपेजियम के दोनों diagonals मिल गए आपको. अब इसमें क्या क्या पार्ट इक्वल है पहले वो लिखते जाइए, ध्यान से देखिएगा. इन ट्राइंगल ABC एंड सेकंड ट्राइंगल BAD में AB और BA दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो देखो ये AB और जो B है बात तो एक ही है, तो कैन यू राइट बिकॉज AB इज इक्वल टू BA कॉमन. ये दोनों साइड आपस में इक्वल है बिकॉज कॉमन. AB नेमिंग के हिसाब से AB और BA. सेकेंड रिजल्ट में आपको ध्यान रखना है, जो रिजल्ट A और B आपने इक्वल प्रूव किया तो देखो क्या ये हम यूज कर सकते हैं. देखना ये इन ट्राइंगल ABC में देखिए पहले फर्स्ट ट्राइंगल ABC में ये पूरा एंगल आ रहा है, एंगल B मींस दिस एंगल. एंड इन ट्राइंगल BAD में ये एंगल पूरा आ रहा है, एंगल 1 मींस एंगल A. ऑलरेडी प्रूव, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B. लास्ट हमें एक पार्ट और चाहिए. अब देखते हैं ये है इन ट्राइंगल ABC में साइड BC, ये रहा साइड BC, यहाँ भी देख सकते हैं और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. BC साइड है ये, नॉट एंगल. यानी इन ट्राइंगल BAD में AD, ये AD क्या इनको इक्वल कर सकते हैं बिकॉज इट इज, ये तो हमें गिवन था तभी तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. और नाउ अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABC ये साइड कॉमन है और ये साइड इक्वल कर दिया हमने. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, एंगल B, वो भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया. सो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. अब इसके बेसिस पे बाय CPCT लिख दीजिए डायरेक्ट. बाय CPCT लास्ट रिजल्ट हमें प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल. तो ऑटोमेटिकली हो गए डायगोनल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ABC में AC डायगोनल. सो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल इन ट्राइंगल BAD में BD. ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया आर बाय CPCT. ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ में मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ. आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है. जो ये बेसिक है कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम के बेसिस पे और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल. लास्ट हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट 10th क्लास में यूज़ होगा. वैसे तो 9th के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो 10th में हमें यूज़ करने ही है, इसलिए क्लासेस को मिस ना करें. और साथ में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.1 में कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं 9928067068 ऑन द व्हाट्सएप पे. तो अभी अपन इसको ऑफ करते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड डे.